السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ہارون رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں ہوشیاریاں۔ دوستو، معاشرے کی خوبصورتی یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اختلافات کو برداشت کریں، نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خوبصورتی اس چیز میں ہے کہ ایک دوسرے کے اختلافات کو قبول کر لیں۔ ہم سب ایک جیسے حالات میں پیدا نہیں ہوتے، ہم سب کو ایک جیسی صلاحیتیں نہیں ملتی۔ ہمیں اگر کوئی ہم جیسا مل جائے تو ہمیں اس پہ خوش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک دوسرے کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے منفرد صلاحیتیں دی ہیں ان کو سراہنا چاہیے۔ اگر آپ غور کریں تو آپ کے چاروں طرف ہر شخص کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی صلاحیت، کوئی ایسی قابلیت دی ہے جس کے بارے میں وہ خود بھی شاید نہیں جانتا۔ ان کو اپنا جیسا بنانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ یہ کوشش کریں کہ آپ ان کو بتانے کا ذریعہ بنیں کہ ان کے اندر کیا خاص بات ہے، اللہ نے ان کو کیا تحفہ دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ہاں، اگر ہمیں کسی ایک چیز کے نیچے جمع ہونا چاہیے جس میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے تو وہ ہیں اصول، وہ ہیں اخلاقیات۔ آئیے اسی پیغام کے ساتھ آج کا شو شروع کرتے ہیں۔ آپ کو لے کے چلتے ہیں ایک فلم ڈائریکٹر صاحب کے پاس اور دیکھتے ہیں ان کے دفتر میں اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ میں ہوں سب کچھ چھڑ کے نا جی انگلش فلم سٹارٹ کر دی تھی، دیکھنی شروع کر دی۔ بھئی کیا مطلب سٹارٹ کر دی؟ انگلش فلم سٹارٹ کی تھی، بنا رہے ہیں انگلش فلم۔ اچھا 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 اچھا، اولا سنیارا، انگریزی اولا سنیارا انگلش میں کیسے ہوگی؟ انوسنٹ جیولر۔ ہمیں ذرا اپنی نئی فلم کا پلاٹ تو بتائیے، کہانی تو بتائیے۔ نئی فلم کا پلاٹ ہے جی 7 مرلے تھا، انشاءاللہ ڈبل سٹوری کرنا۔ دیکھیں صادق صاحب، مذاق نہ کریں، میں فلموں کے بارے میں، آرٹ کے بارے میں بڑا سنجیدہ آدمی ہوں۔ یہ انگلش فلم ہے، اچھا، جس میں جیسے انوسنٹ سنیارا۔ اوپننگ شاٹ کیا ہے؟ اوپننگ شاٹ جیولر دی دکان ہے، اچھا تے جیولر چابی گھر پہ لائے تے تالے توڑ رہا ہے۔ اچھا، واہ، ویسے انٹرسٹنگ ہے، یہ واقعی انٹرسٹنگ بات ہے۔ اتھوں سٹارٹ کی۔ اچھا، وہ یہ نہیں کر رہے چول کہ میں گھر چلا جاؤں جا کے چابی، ساری مارکیٹ کو لوگوں نے لتر کھا لے لیکن تالے توڑ لے۔ پہلے تو لوگ سمجھ رہے چور ہے۔ بات یہ کہ تالے نہیں توڑنے دینے چاہیے، چاہے وہ مالک ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کسی پارٹنر کے ساتھ اس کی لڑائی ہو گئی ہو اور وہ اس چکر میں ہو کہ اپنا سامان وہاں سے نکال لوں۔ بالکل ایسے میں آپ کو سچا واقعہ بتا رہا ہوں، میرے ساتھ یہ ہوا کہ میرے ایک آفس میں جب آدھی رات کو میں اپنے وہاں اس آفس میں گیا تو چوکیدار نے مجھ سے باقاعدہ پوچھا، اور یہ مجھے بہت اچھا لگا۔ اس نے مجھے پوچھا کہ رات کے اس پہر صاحب آپ آئے کیوں ہیں؟ آپ اگر میری والد صاحب سے بات کرا دیں یا کسی اور سے کرا دیں، پتہ چلے ایسی ایمرجنسی کیا ہے کہ آپ رات کو 1 بجے دفتر کھولنے آئے۔ اور مجھے اس کی یہ بات بہت اچھی لگی۔ لیکن تسی دسیا نہیں ہونا کہ میں نے والد صاحب نے مار کے کٹ دیتا ہے۔ لو جنہوں نے لچ سریے پایا وہ بھی علامہ دین آ گئے۔ صادقہ وہ انیاں پوڑیاں تیرے دفتر دیاں میں کتنی سیڑھیاں ہیں جی؟ اور جی میں کڑیاں گڑیاں نے ادھیاں پوڑیاں چ پہنچیاں جی تے میری لت کھل گئی۔ کھل گئی کیا مطلب؟ او پاجی ایک لت نہیں نا لکڑ دی ہے۔ اوکے اوکے اوکے، ادھا گھنٹہ تے میں پوڑیاں چ بیٹھ کے اپنی لت کسی تے پھر اتنے آئے۔ میں سمجھا لوڈ کر کے چلاؤن لگا۔ ڈچکوٹ تین پتا کہ میں ٹائم دے کے کدی لیٹ نہیں ہویا۔ یہ کوئی شک نہیں۔ فلم سٹار ممتاز نو جان دے ہو؟ جی جی میں جانتا ہوں۔ 2 ویاہ دے میں کرائے نے۔ جو سے پہلے نکاح خاں سی نا۔ کیا مطلب 2 شادیاں آپ نے کرائی؟ میں کہ تو میری بہن ہے، اچھا، تو 10 منٹ سے ویاہ کرانا، جتھے انہیں کیا میں کہا پینا اسے گھر تو جائیں گی۔ کیونکہ اپنی بنے تو مندیاں نہیں سی، انہوں نے مرضی سارے دن میں دکھایا کہ سپرمین ہے۔ اچھا، اورنج ٹرین تے اترے ہے۔ سپرمین اورنج ٹرین میں بیٹھا ہوا ہے؟ او دے اترے اترے گا یار، کیوں دے اچھا، بیٹھا ہے؟ اوپر سے اورنج ٹرین پہ اترا ہے؟ اترا ہے جی کٹ کر کے دکھایا کہ اگلے گیٹ تو ایک لڑکی اتری ہے۔ یار یہ مجھے اچھی لگ رہی، یہ فلم مجھے اچھی لگی۔ کٹ کر کے دکھایا کہ اے سپرمین ایک گیٹ تو نکلے، ٹھیک، اگلے گیٹ تو ایک لڑکی نکلی ہے۔ اور ڈسکورڈ تیرے ورگا مان نہیں ہو جمنا وا۔ چودھری نے لڑکی دی باں پھڑی تے سپرمین نو کہ نکل۔ اچھا، انہوں نے کیریکٹرز جو ہیں وہ سپر ہیروز رکھی ہیں، لیکن باتیں ان کی ابھی بھی پرانی فلموں والی ہیں۔ جی حضرت ذہن تے زور پاؤ، تو مچھاں تے زور پایا ہے کہ سپرمین فلم دے بینڈ پتے جی جی انج کر کے بہن دی ڈولی اپنے موڈے تے رکھ کے جدو اڈے گا بدلاں چ دسو فلم ہٹ ہوئے گی کہ نہیں ہوئے گی؟ آیا ہیروین بلا کتنے پہ آئی ہے؟ کدھر؟ اے چند تے چرخیلی مائی نہیں ہوتی، نو ہے۔ ہیلو سپرمین کابت آ یار۔ اوئے ہوئے تینوں پتا اتنے سگنل نہیں آتے، تیرے بھی نہیں آتے۔ ہاں جی دسو کی گل ہے، دسو۔ اور دھیان نہ میری لت تے چھال مار دی۔ چودھری اونچائی تے تو چلا ہی گیا، انہوں ڈولی دے تو اتنے چلا جائے۔ دسو ٹیوں ٹیوں
ट्यों ये तो बना बनाया सुपरमैन है, किसी स्टंटमैन की भी जरूरत नहीं। कौन सा सुपरमैन ट्यों ट्यों करता है? दसो जी फिल्म की स्टोरी दसो। सुपरमैन दी जमीन ते दुश्मनी। हाँ नहीं नहीं मैं जमीन ते आना ही नहीं, मेरी दुश्मनी उत्ते रख किते, एडा नीवा मैं नहीं लड़ सकदा। हुण कद लिए आया, राशन लेना है बंटी यार बंटी, बंटी यार बंटी। और बंटी और बबली ਇਹਦਾ ਚਾਚਾ ਇੱਕ ਚਿੰਗਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਟੌਫੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। हाँ नहीं टॉफी नहीं, मेकअप करवाओ चथू। चौधरी जन्नत च घर बनाना चाहना, ਹੁਕਮ ਕਰ ਡਿਸਕੋਟ। ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹ ਫੜਾ। हारून साहब, ये सुपर हीरोज के कैरेक्टर्स डेवलप क्यों किए जाते हैं? असल में जिन सुपर हीरोज की यहाँ बात हो रही है ना, स्पाइडरमैन, सुपरमैन वगैरह वगैरह, हल्क शल्क किए, वो ये सारे एक ही आदमी ने कंसीव किए थे। हाँ। वो था स्टैन ली। हाँ। उसने बच्चों के कार्टून्स बनाए थे, कॉमिक बुक्स बनाई थी, पब्लिश की थी, उसकी कंपनी थी बहुत बड़ी, उसकी फैमिली ओन्ड थी। वहां से ये सारे निकले, कुछ डीसी कॉमिक्स में, कुछ मार्वल्स में वगैरह वगैरह। लेकिन असल में तो बच्चों को खुश करने के लिए बनाई गई। हाँ। लेकिन अब बड़ों ने भी, खासतौर पे मैं खुद भी, डॉक्टर स्ट्रेंज हो गया, जितनी मैं कोई फिल्म नहीं छोड़ता, ये सारी फिल्में मैं देखता हूँ, लेकिन सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। अदरवाइज मैं ये समझता हूँ कि ये बच्चों को मैसेज हम गलत दे रहे हैं। ये गलत मैसेज है कि भाई एक सुपरमैन आएगा, आपको आके बचाएगा। सही। फिर आपको काम करने की क्या जरूरत है कि एक दिन कोई सुपर हीरो आएगा, वो मुझे बचा लेगा। असल में अपनी जिंदगी के, अपनी तकदीर के, अपने फैसलों के, अपने मुस्तकबिल के सुपर हीरो आप खुद हैं। और उसमें आपकी जो ताकत है वो खुदा पर ईमान है। ਇਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਸ਼ਾਦੀशुदा है। खुदा दी कसम मैं तो बंदे मिल चुका हूं। ਓਏ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਾਥ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਦਾ। अच्छा, आप जानते हैं ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ज़ीशान ने? ਤੇ ਇਹ ਕੁੜੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਐਂ ਤੱਕ ਰਹੀ ਸੀ। अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਪੁੱਤਰ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀ, ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? जी, ਕਹਿੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਰਹਿ ਗਿਆ। अच्छा ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਜੇ ਗਾਣਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਜਾ ਕੇ ਪੇਟੀ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਬੁਲਾ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ। हेलो ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਲਟਨ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬੈਟਮੈਨ। ओए दिहाड़ी लानी जे, आ जाओ फिर दफ्तर च। ऐसे जरा टीम पूरी हो रही ना जी, फिर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सब्जेक्ट अपना सुनावांगा। भाई बहुत खूब भाई, मजा आ गया। आपने ये धोती क्यों बांध रखी है? तारा जिदा पानी का वारा सी, ट्यूबवेल तो सीधा इधर आया। अच्छा, मैं लेफ्ट आउट फील नहीं करना चाहती, मैंने चूंकि ग्रीन लैंटर्न देखी नहीं, मुझे पता नहीं है कि क्या है। अच्छा, ग्रीन लैंटर्न एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके पास पावर्स आती हैं फ्रॉम आउटर स्पेस। अच्छा। वहां भी किसी और सियारे से पावर्स हैं जो कि जमीन पे आती हैं, और वो एक ह्यूमन जो है उसको टच करता है तो वो पावर्स उसमें ट्रांसफर हो जाती हैं। ये ऐसी पावर्स होती हैं जो पूरी दुनिया, पूरी यूनिवर्स में जो है वो लोगों को तलाश करती हैं। जो नेक लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, प्रिंसिपल्स वाले लोग होते हैं, वो पावर्स उनको जाके मिल जाती हैं। अच्छा जी, तीसरा कैरेक्टर बुलाए। ਉਹ ਸਾਦੋ ਬਾਂਦਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੀ? ये मुझे सुपर हीरो नहीं लग रहा है, ये मुझे विलन लग रहा है। क्या आपको बाकी सुपर हीरो लग रहे हैं? तारे जा ग्रीन लैंटर्न जड़ा जी, जी। आम गड्डियां दे पीछे नहीं लगा हुंदा, शीशे ते है। हेलो इत्ती आ यार। अच्छा, कोई दुनिया का कैरेक्टर ऐसा नहीं जिहदा नंबर इहदे को नहीं हैगा। बाकी किंग कांग नु मेरा ख्याल पैम्पर छोटा लग गया। मेरे को आके खड़ो गया, बुरश कराना मेरे को। अच्छा जी, गुजारिश है कि सुपरमैन आया, अच्छा। ओदा ध्यान पे और ट्रेन पलट रही है। अच्छा, यूं करके आया तो ट्रेन सीधी कर दी। ਹਾਏ वाह वाह। आप ईमानदारी देखो, टिकट ਲਈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। नहीं, नहीं, ये अच्छी बात। सुपरमैन नु उस ट्रेन ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ 6-7 लोग जी, ਮਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ओह, क्यों? क्यों जी, मैं तो सीधी की थी ट्रेन यार। वो लेक्स लूथर के साथी होंगे ना, किसके? लेक्स लूथर के। अच्छा अच्छा अच्छा, दुश्मनों के साथियों ने इसको मारा। नहीं पता क्योंकि मेरा एडा अबूर नहीं है ना थे। ट्रेन सीधी की थी है, उत्थे क्लैप होनी चाहिए, बल्कि 600-700 रुपया होना चाहिए। और ये बात भी सच्ची होगी कि मोर पावरफुल देन अ स्पीडिंग ट्रेन। एग्जैक्टली। अच्छा, फिर क्या होता है? सर मैं तुहानू की दसा, अगला सीन जड़ा ना थोड़ी अखा जा सुआ ओह, की गल? अल्लाह मेरा जानदा, वो लिख बैठा ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜੇ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ जी, ਕਿ ਸੁਪਰਮੈਨ ਉਸ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬੈਠਾ हाँ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਸੁਪਰਮੈਨ ਦਾ ਹੀ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਪਿਆ हाँ, ਤੇ ਕੋਈ 20-22 ਮੰਜ਼ਲਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਏ। अच्छा, ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਏ। ओह, ਸੁਪਰਮੈਨ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਔਰੇਂਜ ਟ੍ਰੇਨ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣਾਓ, ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕਰਕੇ ਉੜਿਆ। हाँ, उड़दे सारे ने जाके इंज करके
ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਾਈ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦੀ, ਉਹਨੇ ਤੱਤਾ ਤਵਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥੇ ਲਾਤਾ, ਮੈਂ ਐਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਆਇਆ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਤੂੰ ਐਗਜ਼ੈਜਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ। ਯਾਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰੋਕਣੀ ਸੁਪਰਮੈਨ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ जी ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। 3 ਮਹੀਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਲਾਣਤ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਆ? 3 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ। ਡਜਕੋਟ ਹਾਂਜੀ ਕਹਾਣੀ ਤੂੰ ਲੰਮੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਲੱਕੜ ਵਾਲੀ ਲੱਤ ਵੀ ਸੌ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋ ਇਹਨੇ ਮਾਰ ਕਦੋਂ ਖਾਣੀ ਹੈ? मार क्यों खानी है इसने? ਸਾਰੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁੱਕੀ ਹੈ। क्या ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਕੋਲੋਂ ਮਾਰ ਖਾਣੀ। What? ਭਾਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ 200 ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਾ ਹੀ ਜਾਏ। स्टैनली की तरह एंट्रीज देना चाहते हैं फिल्म में। हाँ कैमियोज करना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि मौजू जो है वो हर सुपर हीरो से ऊपर है। एग्जैक्टली। अच्छा देखो बात सुनो बैटमैन, जी तुम्हारा तो शहर है गौतम, पाकिस्तानी फिल्म में तुम्हारे शहर का क्या नाम? ਇਹ ਗੁਲਾਮਾਬਾਦ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਇਹਨੂੰ ਯਾਰ। ਯਾਰ ਰਸ਼ੀਦਾਬਾਦ ਆ, ਐਵੇਂ ਗੁਲਾਮਾਬਾਦ ਪਚਾਈ ਜੰਨਾ। ਨਾਲੇ ਜੇ ਕੋਟੀ ਖਾਣੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੌਜੂ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਐਡਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੀਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਰੁਪਈਏ ਗੰਦੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਧੋਤੀ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਬੰਨੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਈ ਹੈ। अच्छा बैटमैन के पास तो बहुत बड़ा मेंशन होता है, एक महल होता है, तुम्हारे पास भी है? ਉਹ ਸਰ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੈਗਮੈਨ ਆ ਜੀ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੀਸਰੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਆ ਮੇਰਾ ਘਰ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਮੋਟਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਕਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਵੀ ਮੋਟਰ ਚਲਾ ਦੋ ਫੇਰ भाई ਪਾਣੀ उसके घर के चारों तरफ से एक आबशार होती है जिसमें से वो निकलता है ਉਹ पानी। ਨਹੀਂ ਆਬਸ਼ਾਰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਜਾਏ ਟੈਂਕੀ। उसके पास तो इतनी शानदार बैटमोबाइल होती है, तुम्हारे पास क्या है? ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਚੀ ਵਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ 35 ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ 35 ਰੁਪਏ ਸਵਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿਣਾ? ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟ ਆ ਤੂੰ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ये ब्रूस वेन तो इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी मस्किन। उसका नाम तो ब्रूस वेन है, तुम्हारा नाम क्या है? ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਡ੍ਰਿਪ ਲਾਇਆ, ਵੇਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਉਹ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਦਾ, ਫੇਰ ਵੇਨ ਫੁੱਲਦੀ ਹੈ। अच्छा ये बताओ, जब वो बैटमैन बोलता है तो उसकी आवाज में एक ग्रंजर है, वो बड़े हैवी टोन के अंदर बात करता है। ਗਲੈਂਜਰ ਆ ਬੈਟਮੈਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਧੋਤੀ ਜੇ ਬੰਨੀ जी ਲੱਗਦਾ ਗਾਣਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਸੁਣ ਵੇ ਬਲੌਰੀ ਅੱਖ ਵਾਲਿਆ। ਕਿੰਗ ਕੌਂਗ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬ ਆ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ। किंग कॉन्ग, आप पाकिस्तान में आके एक और वजह से भी बहुत अच्छा महसूस कर रहे होंगे कि यहाँ पे स्काई स्क्रैपर्स कम हैं, चलने फिरने में तो बड़ी आसानी होती होगी। ਉਹ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਰੂਣ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਰਖਤ ਲਾਏ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਿੰਗ ਕੌਂਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਗਿਆ जी ਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆਣ ਡੇ। जी जी ये बात ठीक ਉਹ है। ਕਿੰਗ ਕੌਂਗ ਸਮਝਦਾਰ ਆ ਕੇ ਫੜੇ ਜਾਣ, ਸਰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਨਾ ਜੁਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਣਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨੇ ਚਪੇੜਾਂ ਚਪੂੜਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਢਿੱਡੋਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੋਗੇ ਨਾ जी ਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ ਵੀ ਵੱਜੀ ਮੇਰੇ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਢਿੱਡ ਕਿੰਗ ਦੀ ਕੌਂਗ ਮੈਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। अच्छा ये ओरिजिनल फिल्म में किंग कॉन्ग जो है वो कभी 40 फीट का हो जाता था, कभी 15 फीट का, कभी जी। 150 फीट का, अब बेचारा बिल्कुल 5 फीट का रह गया। बिल्डिंग्स की प्रोपोर्शंस ही नहीं थी। Exactly. किसी सीन के अंदर बिल्डिंग्स छोटी थी और किंग कॉन्ग असल साइज का उन्होंने कैमरे में दिखा दिया। बिल्कुल। कुछ में उन्होंने किंग कॉन्ग को दूर कर दिया और बिल्डिंग्स नजदीक कर दी। ਉਹ ਤੇ ਕਿੰਗ ਕੌਂਗ ਕਰ ਚੜਦਾ ਸੀ ਨਾ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤੇ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਇੱਧਰ। जी ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਖੱਬੇ ਤੇ ਛੜਿਆ, ਥੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੌੜੀ ਖਿੱਚਦੀ, ਉੱਥੇ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੱਥਣਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂ? ਪਿਛਲੀ ਫਿਲਮ ਜਿਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਮਰ ਗਈ। नाजरीन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। ਸੋਮੋ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਂ, ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ। कुश्तियां बंद थी का क्या मतलब है? ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੋ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਤੋਂ ਜੈਲਸ ਸਨ। वेलकम बैक नाजरीन। जी इर्जा, क्या खबर है आज? खबर है कि माल्टे चोरी करने वाला शख्स दुबई पुलिस की गिरफ्त में आ गया। असल इशू ये है कि एक बहुत अमीर अरबी है जिसका एक बहुत बड़ा मेंशन है। उस मेंशन में उसने बाग लगा रखा। वहां पे बाग लगाना जो है ये एक पूरी एक्टिविटी है, बड़ी एक्सपेंसिव किस्म की। यहाँ तो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने हमें काली मिट्टी दी है जिसमें जो भी आप उगाएं माशाल्लाह उगाता है, लेकिन
वहां पर आपको बहुत ज्यादा मट्टी मंगवानी पड़ती है, बड़ी निगहदाश्त करनी पड़ती है, तो बच्चों की तरह उन पौधों को रखते हैं, लेकिन इस पे भी सजा नहीं हुई। फिर? उसने अंदर जाके घर के माल्टे तोड़े हैं, लेकिन इस पर भी उसे सजा नहीं हुई। उसने अंदर जाके, उसकी गाड़ी थी फरारी, उसके शीशे तोड़े हैं जी, उस पे भी सजा नहीं। फिर वो अंदर गया, अंदर बेडरूम में उनके वालिद साहब लेटे थे, उनकी टांगे तोड़ी, फिर सजा नहीं। फिर वो छत पे गया, उसने उनका लेंटर तोड़ा, फिर भी सजा नहीं। नहीं, मैं बताता हूं आपको, उसको फिर उसने अंदर जाके बेगम साहिबा के 32 दांत तोड़े, फिर भी सजा नहीं। उसको सजा इस बात पे हुई है, या वो पकड़ा इस बात पे गया है कि उसने ट्रेस पास किया है, किसी की प्रॉपर्टी के अंदर दाखिल हुआ है। पहला जुर्म जो था उसका वो ये था कि वो घर के अंदर गया। अच्छा, जड़ी इन्नी टुट भज हुई, ਇਹਦਾ कुछ नहीं होया। तो आपने किया ये तो हुई नहीं। उसने तो सिर्फ फरारी में बैठ के थोड़ी देर उसके मजे लिए हैं, फरारी के बैठ के स्टार्ट किए बगैर उसके। खड़ी फरारी दे जी खड़ी फरारी। ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਚਵਲ ਪਾਗਲ ਸੀ। इसी शुरते ने एक और आदमी भी पकड़ा है जो वहां पर सड़कों पर एक बोतल लेके फिरता है शहद की। अच्छा। और उस पर इल्जाम ये है कि वो शहद नहीं बेच रहा, वो मांग रहा है पैसे लोगों से, और जब पुलिस आती है, ये शुरते आते हैं, तो ये कहता है मैं तो शहद बेच रहा हूँ। अच्छा, एक और एक्सट्रीम ये भी है, ये लोग तो बहुत लकी हैं जो सिर्फ पकड़े गए हैं दुबई में या यूएई में। अमेरिका में तो ट्रेसपासर्स को गोली भी मारी जा सकती है। क्या? जी, आपके घर में अगर कोई घुस आया है तो अमेरिका में तो वो फायरिंग कर देते हैं, और वो सबसे पहले गन निकाल के कहते ही हैं कि तुम ट्रेसपास कर रहे हो। और ये जो आदमी था, ये जापानीज था जिसने ट्रेसपास किया है, जिसके लिए इसने किया, वो कहता ये है कि ये मेरी मंगेतर है, उसका ताल्लुक इंडिया से। आजा हरूना, जी उधरों आके हुन सुकून है। ये वो शुरता है जी। आजा अब्दुल्ला शुरततुन, अच्छा जी। आजा शुक्रन शो शुगलन, आजा मोटाउन हसौंदाउन, जी आजा मुच्छाला खग्गुन, आजा आला कुल्लुन। आधा थोड़ी देर बाद सेगमेंट खत्म होए तुन, आधा सुक्कतुन हसायतुन। ये शुरते कहाँ से बुलाए तुम? अंता मालक तुन, अंता इन्ने माल्टे तोड़े तुन, अंता मैं सुता तुन। ਇਹਦਾ ਤੁਨ ਕੱਢ ਦਿਓ ਨਾ, ਅਰਬੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾ ਫਕੀਰੁਨ, अच्छा, ये वो जो शहद। ਆਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਦ ਵੇਚੇ ਤੁਨ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਦਾ ਨਾ ਸ਼ੁਰਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੀ ਆ ਡੱਬੀ ਜੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਬਾਹਰ। ਇਹ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਦੇਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 3-4 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਦੀ ਤੁਨ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਤੁਨ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਹਿਦ ਕੱਢੇ ਤੁਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤੁਨ। ਸ਼ਹਿਦ ਤੇ ਮੱਖੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ जी ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹਿਦ ਵੇਚਣਾ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। और ਇਹਦੇ ਭਾਜੀ 2 ਬੀਵੀਆਂ ਨੇ, अच्छा जी। ਦੋਨੋਂ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਸ਼ਹਿਦ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀਆਂ। अच्छा, ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਭਾਜੀ ਕਿਹੜੀ ਮੱਖੀ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਵੱਡੀ ਮੱਖੀ ਦਾ। ਵੱਡੀ ਮੱਖੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਲੜ ਕੇ ਘਰ ਗਈ ਹੈ। आपके साथ क्या माजरा हुआ? ਸਰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮੈਂ ਜਾਪਾਨ ਚ ਸੈੱਟ ਸਾਂ, जी ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਲੜਦਾ ਸਾਂ, ਸੋਮੋ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਂ, ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ। कुश्तियां बंद थी, क्या मतलब है? ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੋ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਤੋਂ ਜੈਲਸ ਸਨ। आजा मस्तूरातुन, तेरा की रौला तुन। हाँ, आधा खट्टा किन्नू खाता तुन, खांसी तुन। आजा तिन्नों इत्थे पै तुन, उनको अपनी बीमारी तुन। आपने इनको कीनू लेने क्यों भेज दिया? ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਕੜੀ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਚਿੱਲੇ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਦੇ ਪਰਚੇ ਚ ਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਾਲੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦਈ? नहीं, वो गालियां नहीं दे रही। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਨਾੜਕੋ ਲੱਕੁਲੀ। नहीं ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾੜਕੋੜੇ ਪੁੱਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਕਿੰਨੂ ਹੈ ਨਾ ਪੋਲਾ ਸੀ। आपने ने गालियां तो नहीं दी ना? ਕੁੰਚਮ ਕੁੰਚਮ ਆ ਵੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੜਦਾ ਕਿੰਨ ਬੜਾ ਰਕਲਾ ਰਿਦੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਰਾ ਟੁਕੜੇ ਗੜ ਤੂੰ ਖਾਤਰ ਗੜ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਟ ਦਿਨ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਦ ਵੇਚਦਾ ਜੀ ਇਹਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸਜਾਤਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੱਖੀਆਂ ਲੜ ਗਈਆਂ ਮੱਖੀਆਂ। अच्छा, आप पे ये इल्जाम है कि आप ना इस आड़ में कि आप शहद बेच रहे हैं, आप मांगते हैं। ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। अच्छा, तो फिर ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਜ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਬਈ ਨੇ ਇਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦੀਆਂ ਲੀਕਾਂ ਵੇਖ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੰਗ ਕੇ ਹੀ ਮਰਨਾ। अच्छा जी, तो ये तो मांगने का स्टाइल है। ਉਹ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ। तो फिर क्या करते हैं आप सड़कों पे? ਸ਼ਹਿਦ ਵੇਚਣਾ ਜੀ। कैसे बेचते हैं शहद आप? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਵਿਖਾਣਾ ਜਨਾਬ। जी बेचे, मुझे शहद बेचे। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਮੱਖੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਖੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਿਆ।
बेचें मुझे शहद बेचें जी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ 1000 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। अच्छा ਹਾਂਜੀ अच्छा, इसको रखिए, मुझे बताएं कितने का है ये, मैं ले लेता हूँ, बताइए। ਹਜ਼ੂਰ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਵੇਚਾਂਗਾ? ये क्या बात हुई? ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਆਦਮੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਹਟਣ ਵਾਲਾ ਇਲਾਜ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਦ 'ਚ 1000 ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆ। जी जी ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ जी ਗੱਡੀ ਵੱਜੀ ਏ जी। ਤੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਖੂਨ ਹੀ ਹੋਵੇ। नाज़रीन, वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਈ ਕਿਆ? ਇਹਦੇ ਚ ਗੋਗੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, कौन सा? ਸੋਚਾਂ ਦਾ ਕੀੜਾ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਟੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। वो क्यों? ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਉਤੋਂ ਕੀੜਾ ਟੁੱਕਣ ਡਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? वेलकम बैक नाजरीन। जी इर्जा, हारून साहब बहुत दिन हो गए हमने एक सेगमेंट नहीं किया, कौन सा? आज हम दहाने जानिश कर लेते हैं। दहाने जानिश। जहाने दानिश। ओहो, वो जब से सुना है ना कि काम पे टांग रही है, मैं सारे ਮਾਸੂਮ ਬਲਾਵਲ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਰਜ਼ਾ ਰਾਤੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਗਈ ਉੱਥੇ ਸਲਾਮੀ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬੈਠੇ। अच्छा ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਾ ਜ਼ੇਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ 20 ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਖਾ ਖੂ ਕੇ ਰੋਟੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾ ਲਿਖ ਲਈ। क्या लिख लेना? ਅਗਲੇ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। जी। ਔਰ ਜੋ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। क्या देते हैं आप? ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਵੀ। सर इर्जा आजकल ना बहुत फंबल हो रही बेचारी। नहीं, इर्जा फंबल नहीं हो रही हैं, हाँ? और ये जानबूझ के बिलावल पे डाल रही हैं बात को। हालांकि बकौल शेख रशीद साहब के कानून में हाथ ना लें। सर मसला ये है कि सब दी एक दूसरे तो ज्यादा एजुकेशन है। अच्छा, जहां तक एजुकेशन की बात है तो आज जो हम जहाने दानिश करने लगे हैं, आपने जैसे बात की तो मेरे जहन में ये बात आ गई कि आज का जो हमने मोनोलॉग किया है उसको ही हम एक्सटेंड कर लेते हैं, उसी पे हम सब लोग बात कर लेते हैं। दुनिया के अंदर आपने लोगों के साथ रहना है। अकेले तने तन्हा जो है इंसान जिंदगी नहीं गुजारता। इंसान को अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि वो अपने लोगों में खुश रहता है, जिंदगी गुजारता है। जैसे कि आप नोट करें, आप कभी मुल्क से बाहर चले जाएं और आपको वहां बहुत अरसा गुजर जाए और कोई अपना हम वतन नजर आए, वो कहीं का भी हो, बहुत मर्तबा तो आपको पाकिस्तानी ना मिले, इंडियन भी मिल जाए, तो आपको ऐसे ही लगता है देखने में कि मेरा हम वतन है, तो आपको होमी सी एक फीलिंग आती है। आप उसके साथ बैठ के गप्पे मारते हैं, बातें करते हैं। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਸੁਣਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ। ये तो खैर सलीम साहब फजूल बातें ना। ਵਾਗਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। तो बात हम ये कर रहे थे कि आप अपने लोगों के साथ रहना अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन आप जितने ज्यादा लोगों के साथ जिंदगी गुजारते हैं आपके इख्तलाफात उतने ही बढ़ते जाते हैं। कहते हैं ना, बर्तन इकट्ठे हों तो जी बजते हैं, वगैरह वगैरह। जी जी। इसी तरह अगर आप कोर्ट्स में चले जाएं, सबसे ज्यादा केसेस, चाहे वो जमीन के हवाले से हों, चाहे रिश्तेदारियों के हवाले से हों, वो सब के सब केसेस आपस में ही होते हैं, कजन्स के। गैरों के केसेस सबसे कम है। अगर 100 केसेस हैं, जमीन का तनाजा है, फैमिली का तनाजा, अगर 100 केसेस भी है ना जमीन के हवाले से, खास तौर पे जायदाद के हवाले से, 100 में से 98 या 99 इवन वो भाइयों के दरमियान, सगे भाइयों के दरमियान, या अपने चचाजाद, मामूजाद वगैरह वगैरह। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि इख्तलाफात जिंदगी का हिस्सा हैं। आप जहां भी कुछ खाने के लिए भी चले जाते हैं, मेन्यू में कुछ ऑर्डर करते हैं, सब लोग एक ही चीज ऑर्डर नहीं करते, इख्तलाफात तो होते हैं। ਵਿੱਚ ਪਾਗਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ। क्या कहते हैं? ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਚਾय ले आओ, नारो चार मुंह वाला पेचकस ले आओ। पहली बात तो ये फिलिप्स कहते हैं उसे। चार मुंह वाला पेचकस जो है वो इसने क्या करना होता है चाय के साथ? नहीं इन्हें चाय ढिली करके पीनी है। आगा भी इंजी ऑर्डर देता है। क्या? सर मेरे लिए एक कीमे की प्लेट ले आओ और एक हवाई चप्पल। वो क्यों? कीमा मैं खाना ਹੁੰਦਾ, हवाई चप्पल ਇਹਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਗੋਗਾ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। क्या? ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗੀ ਦੀ ਪਲੇਟ ਲੈ ਆਵੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਟਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਲੈ ਆਵੋ। वो क्यों? ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਚਪੇੜਾ ਕਿਨੇ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਇਖਤਲਾਫ ਆ जी। ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਵਾ। अच्छा, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਵਾ। ये केस किया? तू ते अंगड़ाई लेके वास्कट पाड़ देना है ना। अच्छा सिंगल मुंह वाले 2 पेज का स्लॉट पड़े हैं। ਅੱਛਾ ਤੇ ਕੀ ਜਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਲੱਗਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਕਾ ਭੰਗੂੜੇ 'ਚ ਪਿਆ ਪਿਆ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਔਰ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਪੰਘੂੜਨ ਵੀ ਹੁਣ ਖੰਘ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। अच्छा ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਜੁਗਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੇਟੀ ਥੱਲੇ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਾਈ सॉरी मेरा ये काम नहीं था मैं प्लीज जाए आप। अच्छा जी, इख्तलाफ की बात जहां हो रही थी, आम तौर पे समझा ये जाता है कभी भी इख्तलाफ नहीं करना चाहिए, बुरी चीज है, बर्दाश्त कर लेना चाहिए। ये बातें बिल्कुल गलत हैं। इख्तलाफात को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, उन्हें कबूल करना चाहिए। मतलब इसका ये है कि जब कोई आपसे इख्तलाफ करता है और आप उसे कबूल नहीं करते बल्कि आप उससे नाराज होकर खामोश होकर बर्दाश्त कर लेते हैं, तो ये गलत बात है। आप अपनी जिंदगी को मुश्किल कर रहे हैं। अच्छा इंसान वो है जो ये जान ले कि कोई ऐसा बाग जिसमें एक ही रंग के फूल हो वो अच्छा नहीं लगता। यस। आप देखिए कि दो एक जैसे फूल आप ले लें, दो गुलाब के फूल ले लें, कभी भी उन दोनों की पंखड़ियां नहीं मिलती, किसी इंसान के अंगूठे के निशान नहीं मिलते। बेशक हर इंसान को अल्लाह ताला ने एक मुख्तलिफ अंदाज में, मुख्तलिफ हालात में, मुख्तलिफ माँ बाप के यहाँ पैदा किया है, और किसी का उस पर अपना जोर नहीं है कि मैंने कहाँ पैदा होना है, मुझे कैसे हालात मिलें। तो होता ये है कि हम बड़ी एक स्टीरियोटिपिकल सोच रख लेते हैं किसी खास इंसान के बारे में जिसने वो दुनिया देखी नहीं जहां से आप आ रहे हैं जी। और हर इंसान अपनी निजी जिंदगी में, जाती जिंदगी में कुछ जंगें लड़ रहा होता है जो वो सबको बता नहीं पाता। सही। कोई अपने घर में, कोई घर से बाहर, कोई कारोबार में। इसलिए हमें कभी भी लोगों के इख्तलाफ को इस तरह बर्दाश्त नहीं करना चाहिए कि चलें ठीक है जी, आपकी सोच आपके साथ, मेरी मेरे साथ। नहीं, हर इंसान की बात को पहले समझने की कोशिश करें। इख्तलाफ इतनी अच्छी चीज है, इतनी अच्छी चीज है कि अगर आप इख्तलाफ को निकाल देंगे तो दुनिया की तमाम इजादात जमीन बोस हो जाएंगी। और इख्तलाफ से ये भी हो सकता है कि आपकी अपनी इस्लाह भी हो जाए। एग्जैक्टली। उसकी तरफ आप तब आएंगे जब आप दूसरे की बात को शरह सद्र के साथ सुनने की कोशिश करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। जब कोई बात कर रहा हो तो अपने जहन में एक बात हमेशा रखा करें कि जो जिंदगी मैंने गुजारी है इसने नहीं गुजारी, इसी तरह जो जिंदगी इसने गुजारी है मैंने नहीं गुजारी। क्या पता मैं इसकी जगह होता तो मैं भी यही काम करता जो ये कर रहा है। होता ये है कि किसी आदमी को उर्दू अच्छी नहीं आती, लेकिन अगर आपको वो कहेगा कि 2 + 2 = 4, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, 5 होते हैं। नहीं, क्योंकि तुम्हें तो उर्दू पढ़नी नहीं आती, तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती। 2 + 2 = 5 होते, 4 नहीं होते। जो बात कर रहा है वो ठीक है। तो कुल्ली तौर पर कोई भी इंसान गलत नहीं होता। और उसे कहे कि भाई मैं सीख लूंगा। जी जी। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਐਂਕਰ ਆਏ ਉਰਦੂ ਸਿਖਾਉਣ ਨੇ ਸਾਰੇ। बहुत से लोग ये कोशिश करते हैं कि जबान दुरुस्त की जाए। मेरा ख्याल है कि इंसानों की तरबियत उनके दिल की जबान, उनकी सोच की जबान ठीक की जाए। वाह। अगर आपकी सोच की जबान ठीक हो जाए, देखिए आप दुआ मांगते हुए अगर फंबल भी हो जाएं तो अल्लाह को तो पता आप क्या मांग रहे हैं। बिल्कुल। हमारे एक उस्ताद साहब थे, आ गए जी। ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੀਂਹ ਵਾਲੀ पर ਗਏ क्यों की लेंदे उस्ताद जी? यार वो कुछ नहीं लेते। उनसे एक मर्तबा मैंने पूछा कि उस्ताद साहब बहुत मर्तबा समझ नहीं आती कि दुआ क्या मांगे। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। उनसे मैंने पूछा कि जी समझ नहीं आती क्या दुआ मांगे, और कोई तमीज नहीं है दुआ मांगने की, पता नहीं चलता क्या मांगे, हम फजूल चीजें मांगते रहते हैं, मोटरसाइकिल मांग ली, गाड़ी मांग ली, ये वो। उन्होंने कहा कि देखो जिससे तुम मांग रहे हो ना, अगर मांगने वाले को मांगना नहीं आता ना, देने वाले को देना आता है। वाह वाह। सिर्फ हाथ फैला दिया करो, उसे पता है मैंने इन हाथों में क्या रखना है। मिर्जा ये गल गौर ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਸਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਚੌਂਕ 'ਚ ਹੱਥ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਣ ਇਹ ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਤੇਰਾ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਚੌਕ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ। क्या ਬਰਗਜ਼ਾਰ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਇੰਜ 2 ਹੱਥ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਦੁਆ ਚੌਕ। अच्छा आपकी इस बात के बाद अब मैंने सोचा है कि सलीम साहब का दुकान भी ठीक ना करवाया जाए। उनका दुकान तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है मुझे जब वो दुकान कहते हैं, लेकिन आपके बात करना ये बड़ी खूबसूरती है जी। हाँ। मैं आपको बताऊं कि एक जगह है अंदरून लाहौर के अंदर, कसेरा बाजार, जहां बर्तन बिकते हैं। तो मैं वहां एक मर्तबा गया, मुझे वो बाजार ढूंढना था कि वो कहाँ है। वो देखा, मस्जिद वजीर खान देखी वगैरह वगैरह। तो घूमते घामते मैंने किसी से पूछा कि भाई यहाँ पे कसेरा बाजार कहाँ है, तो उस नौजवान को नहीं पता था कि कहाँ है। तो वहां का एक रिहायशी, आप खूबसूरती देखें, मुझे तो बात बहुत अच्छी लगी, मैंने उसको दुरुस्त बिल्कुल नहीं कराया। उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा, पीछे खड़ा था मेरे, वही क्या बात कहता है, ओए बोनट एदड़ काड़। मैंने देखा, मैं जानता ही नहीं था उसको। जब देखा बोनट एदड़ काड़,
तो मुझे बंदा बड़ा अच्छा लगा कि यार कैसा मासूम आदमी है। फिर उसने मुझे सारा रास्ता समझाया और मेरे मुंह को कह रहा बॉनेट इधर कर। ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਯਾਰ ਗੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੀਸਰੀ ਗਲੀ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਫੇਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। अच्छा हारून, इख्तलाफ तो बहुत अच्छी चीज़ होती है, ये बिल्कुल लोगों के दरमियान में होना चाहिए और उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे एक सेइंग है कि अ मार्क ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन इज़ टू एंटरटेन अ थॉट विदाउट एक्सेप्टिंग इट। अगर आप किसी के साथ अग्री नहीं भी करते तो आपको उसकी बात तो ज़रूर सुननी चाहिए। अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं और मेंढक को खोल रहे हैं, उसकी डायसेक्शन कर रहे हैं, इसके लिए ये जरूरी नहीं है आपको मेंढक पसंद हो जी, या आपको उसको डायसेक्ट करना अच्छा लग रहा है। किसी डॉक्टर को किसी भी आदमी के जिस्म पे कट लगाना पसंद नहीं होता, बेशक, लेकिन उसको लगाना पड़ता है। इसलिए जरूरी नहीं कि जो काम अच्छा है आपको वो पसंद भी हो, आप उससे प्यार भी करते हो, ये जरूरी बात नहीं। तो जब कोई बात आपसे ऐसी कर दे जो आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं है, तो जरूरी नहीं है आप उस बात को पसंद करें, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो उस बात को कबूल करके समझ के सुन सकते हैं। क्यों? उसकी वजह यह है कि जितना हक आपको है अपनी बात कहने का, उतना हक मुझे है। पर उसके लिए तो अपनी अना खत्म करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल। इसके बारे में एक बहुत अच्छी सेइंग है एक दरवेश की। वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारी बात से बहुत इख्तलाफ है, लेकिन मैं मरते दम तक तुम्हारा साथ दूंगा कि तुम ये बात जगह जगह कहते रहो। यानी कि बात सुनने का भी हौसला होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। घंटे से सुन नहीं दें ਤੁਹਾਨੂੰ हारून साहब अपनी ऑडियंस की तरफ चलते हैं। जी प्लीज। चलो जी आओ। चलिए आओ। तो भाई ये बैठे रहो। आप ऐसा ये कहें भी ऑडियंस भी कुछ कहना चाहती है। भाई इसका मतलब ये होता है कि ऑडियंस की तरफ अब तवज्जो करते हैं। वो आगा मैसेज है टीवी पे खबरें सुनने क्योंकि आइए आपको पेशावर ले चलते हैं। इन्हें सामान बन लिया और अल्लाह दी कसम है मैंने उन्हें कहा ही नहीं कि पेशोवर चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शफक कैसर है और मैं गाना गाना चाहूंगी। जी प्लीज। तेरे धोखे ने सजना मैनू मार मुकाया। फाड़ लो कुड़ी को साथ चली जाए। बहुत अच्छा गाया। मेरा बेटा जूस पिएगा। ਨਾ ਜੇ ਤੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਬੰਨੇ ਸੀ। ਔਰ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਰਸਮ ਦੁੱਧ ਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਕੁੜੀ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦੀ ਗਲਾਸ। आप लोग अब इनको तंग नहीं करेंगे। जी हेलो जी, कौन? नहीं बेटा, आपके अंकल घर नहीं है। और यार वो माइक चेक कर रहे हैं। पहली भाभी गंजी देखी मैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद नईम है। मेरा आपसे सवाल है, पहले सेगमेंट में नौटंगी में हमने सुपर हीरोज़ के बारे में डिस्कस किया, तो आपका फेवरेट सुपर हीरो कौन सा है? ਅੱਜ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। वो कैसे? मेरी बात सुने, मैं कह रहा हूँ यार बाज आओ। ਸਸਤੇ ਜਿਹੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਨਰਸ ਹੁੰਦੀ क्या मतलब? ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਧੁੱਪੇ ਬਹੁ ਮੈਂ ਚਾਦਰਾਂ ਬਦਲਵਾ ਲਾਂ। देखिए सुपर हीरोज में ना अगर आप फिल्मों की बात करें तो शायद डेविड कम्बरबैच जो है वो मुझे बड़ा पसंद है, बतौर एक्टर बड़ा पसंद है। शायद उसने शेरलॉक होम्स इतनी शानदार एक सीरीज की है नेटफ्लिक्स की, और मैं शुरू से ही शेरलॉक होम्स को बहुत ज्यादा पसंद करने वाला आदमी हूँ। शायद ही कोई सीरीज हो, कोई फिल्म हो, कोई किताब हो जो उसकी मैंने छोड़ी हो, सर आर्थर कॉनन डॉयल की। मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, तो वो जो करते हैं ना डॉक्टर स्ट्रेंज का कैरेक्टर, वो मुझे ज्यादा इसलिए पसंद है क्योंकि उसमें क्वांटम फिजिक्स, टाइम ट्रेवल और टाइम वॉर्प जिसकी हमने बात की, वो सब कुछ इन्वॉल्व है। तो आई पर्सनली लाइक हिम, लेकिन अदरवाइज इन रियल लाइफ, इन एक्चुअल टर्म्स, मुझे सुपर हीरोज नहीं पसंद, मुझे सुपर ह्यूमंस पसंद है। बहुत गुड। जैसे ईदी साहब थे, जैसे अशफाक अहमद साहब, क्या बात, ऐसे लोग मुझे पसंद है। ये होते हैं असल सुपर हीरोज। वाह जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुकद्दस यूसुफ है। मैं एक पंजाबी शेर अर्ज करना चाहूंगी। जी प्लीज। ਸੋਚਾਂ ਦਾ ਕੀੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਪੂਰਾ ਬੰਦਾ ਟੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਚਾਂ ਦਾ ਕੀੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਪੂਰਾ ਬੰਦਾ ਟੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਬੰਦਾ ਮੁਕਦਾ ਮੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਅਗਰ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਐਸਾ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਆਈ ਆ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਦਿਓ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਈ, क्या? ਇਹਦੇ ਚ ਗੋਗੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। कौन सा? ਸੋਚਾਂ ਦਾ ਕੀੜਾ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਟੁਕ ਰਿਹਾ। वो क्यों? ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਉਤੋਂ ਕੀੜਾ ਟੁੱਕਣ ਡਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ?
नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।